Hello dear students, this is Rajiv, Faculty Mathematics, Prince Academy Seeker. See students, for RBSc class 10 we have completed exercise 7.1 up to last lecture. Now in this lecture we are going to start exercise 7.2. See students, exercise first of all we will do introduction about the exercise 7.2. This exercise is dependent on the complement rule of trigonometric ratios. See beta, there is a relation between the different trigonometric ratios with each other with respect to the complement of angles. See, once I am explaining you, everyone try to understand, then I will tell you the direct method you to memorize the facts. Suppose this is the triangle ABC. This is perpendicular. Now see students, suppose this angle is theta and this angle is alpha. This side is x, this side is y and this side is z. Now what I want to tell you students, once you try to understand what is sine theta, cos theta, tan theta, cot theta, secant theta, cosecant theta, okay, and this side I am finding sine alpha, cos alpha, tan alpha, cot alpha, secant alpha and cosecant alpha. See students, you all know Pandit ji, Pandit Badri Prasad, har har bole and sona chandi tole. See students, when we are considering base angle as theta, this will be your base, this will be perpendicular, sine theta will be P by B, yes or no? Sine theta will be P by B. Now see P is X, sorry P by H, sorry beta P by H, X and this is Z, X by Z. Cos theta B by H, B by H, Y by Z. Tangent theta P by B, P by B. Cotangent theta B by P. Secant theta H by B, H by B. This will be H by P, yes or no? Clear dear students? Sin theta, cos theta, tan theta, ये सारी T ratios when the base angle theta for the same triangle we have found. Now see students, sin alpha, जब हम इसको base angle consider कर रहे हैं तो ये आपका base होगा x, ये बन जाएगा perpendicular और ये बन जाएगा base अल्फा के केस में. Yes or no? अब देखो P by H, P क्या है ये? P by H. B by H, cos के लिए B by H. टेंजेंट P by B, P क्या है आपकी बार Y है, ये हो जाएगा B by P. H by B, H by base is this time X और ये Z by Y. होगा या नहीं होगा बताओ बेटा. साइन टेन कोट अल्फा जो भी है ये सारे आपने जितनी भी टी रेशोज है इस ट्राइंगल में वैल्यूज फाइंड आउट की. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बेस लिया एंगल लिया, बाद में इसको बेस एंगल लिया. अब यहां से आप एक रिलेशन देखो बेटा, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 90. सम ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 90. ओ सॉरी 180. यार क्या हो रहा है मेरे में, ये 90 है, ये दोनों क्या बचेंगे? अल्फा प्लस थीटा प्लस 90 इज 180. एंगल सम प्रॉपर्टी, angle sum property of triangles. From here alpha plus theta is 90. उधर शिफ्ट किया, 90 होगा या नहीं होगा? अल्फा प्लस थीटा इज 90. अल्फा और थीटा का सम क्या है? 90. तो ध्यान से देखो तो अल्फा को लिख सकता हूं 90 माइनस थीटा. Yes or no dear students? Can I write like so? अब आप ध्यान देंगे यही बात सारी क्लियर हो जाएगी, यहीं पे सारी बात क्लियर होगी. देखिए
साइन अल्फा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं बीच का पोर्शन रफ करूंगा। टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज बेटा, ये लो। डन। नाउ सी अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से कंपैरिजन करते हैं। अब ध्यान से सुनना, आपके सामने सारी एंगल्स लिखे हैं। देखो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है सेम है या नहीं है, यानी कि ये और ये इक्वल हुए या नहीं हुए। तो मैं लिखता हूं साइन थीटा की वैल्यू आई कोस अल्फा फॉर द सेम ट्राइंगल ना, जहां पर एक बार थीटा एक एक्यूट एंगल था, एक बार अल्फा एक्यूट एंगल था। और अगर आप ध्यान से देखें, अल्फा क्या था बेटा 90 माइनस थीटा, यस और नो। अभी नीचे लिखा था या नहीं लिखा था। डन। यही फैक्ट हम यूज करेंगे, तो ये कोस थीटा और साइन अल्फा इक्वल है या नहीं है। तो यहां से लिख सकते हैं हम कोस थीटा एंड साइन अल्फा आर इक्वल, ये भी y बाई जेड, ये भी y बाई जेड। तो यहां से अगर मैं देखता हूं कोस थीटा, अल्फा की वैल्यू क्या थी साइन 90 माइनस थीटा, यस और नो। कुछ कुछ आया समझ में। इन द सेम वे बेटा अब क्या होने वाला है, टेंजेंट और इस कोटेंजेंट के साथ, ये भी x बाय वाई, ये भी x बाय वाई, दोनों इक्वल। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोटेंजेंट अल्फा, और अल्फा क्या होता है 90 माइनस थीटा। कोट की वैल्यू इसके साथ मैच कर रही है, तो कोट थीटा हो जाएगा टेन अल्फा, यानी कि 10 90 माइनस थीटा, या मैं एंगल लगाना भूल गया, कोट 90 माइनस थीटा। आ रही है बात समझ में। एंगल्स की वैल्यू पुट करने में देखो क्या खेल होता जा रहा है। सीकेंट थीटा कोसिकेंट अल्फा सेम है, और अल्फा है 90 माइनस थीटा। तो मैं लिख सकता हूं सीकेंट थीटा कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। इन द सेम वे कोसिकेंट थीटा और सीकेंट अल्फा इक्वल, मैं यहां लिख रहा हूं कोसिकेंट थीटा हो जाएगा सीकेंट अल्फा, और अल्फा की वैल्यू है 90 माइनस थीटा। देखो ये रिलेशंस बन रहे हैं हमारे पास। लेट मी शो यू द रिलेशंस। देखो ये रिलेशंस बने आपके पास, साइन कोस में और कोस साइन में चेंज होता है व्हेन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल इज देयर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल इज देयर। साइन कोस 90 माइनस थीटा, कोस साइन 90 माइनस थीटा। इन द सेम वे टेंजेंट कोट 90 माइनस थीटा, कोट 10 90 माइनस थीटा। सीकेंट कोसिकेंट में चेंज हो रहा है, कोसिकेंट सीकेंट में चेंज हो रहा है, यस और नो। नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ यू ऑल फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट, देन आई विल गो फर्दर। टेकन। नाउ सी स्टूडेंट्स, हमारे पास यहां से रिलेशन क्या निकल के आया, अब ध्यान से अच्छे से समझना बेटे। साइन चेंज होता है कोस के अंदर, कोस चेंज हुआ साइन में। एंगल लगाने जितने में एक बार जो बता रहा हूं उसको देखो। टेन कोट में और कोट 10 में दोनों तरफ एरो लगा दिया, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये लो 10 कोट में और सीकेंट कोसिकेंट में, एंगल नहीं लगाना। कैसे चेंज हुआ, when angles are complementary। कॉम्प्लीमेंट एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम 90 हो। तो इट मीन्स हमारे पास यहां से एक कंक्लूजन निकल के आया बेटा, ये वाली टी रेशोज आपस में चेंज होती है। 10 कोट कोट 10, सेकेंड कोसिकेंट कोसिकेंट सेकेंड, साइन कोस कोस साइन। इनको बोलते भी है वैसे सिस्टर टी रेशोज। सिस्टर टी रेशोज वो होती है जहां बेटा कॉम्प्लीमेंट एंगल लगे या कोई भी एंगल का रूल लगता है तो ये आपस में चेंज हो जाते हैं, इसलिए इनको बोलते भी हैं सिस्टर टी रेशोज। अब देखो इस पे एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि हमने इस पे अप्लाई कैसे करना है, हमारी एप्लीकेशंस क्या है। ओके, एंड श्योरली यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। सी बेटा, एक बार एक क्वेश्चन देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एक क्वेश्चन में मकसद क्या है, क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है। देखो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट।
सी व्हाट इज गिवन हेयर, अच्छे से देखेंगे इसको। cos 37 बाय sin 53। देखो बेटा, अब मैं आपको इन क्वेश्चंस को डील करने का मूल मंत्र दे रहा हूं। मूल मंत्र क्या है? जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आपने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ध्यान से देखो, आप ये देखें ट्रिग्नोमेट्री रेशो के साथ अगर एंगल न्यूमरल्स की वैल्यू में है, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में है, तो सबसे पहले आप जाएं टेबल की तरफ। दिमाग में आना चाहिए क्या टेबल से कोई वैल्यू नहीं बन रही है, क्योंकि न्यूमरल वैल्यू है ना, ये नंबर्स की फॉर्म में है एंगल। तो आप ये देखेंगे कि कोई टेबल से वैल्यू तो नहीं बन रही है, टेबल से तो यहां नहीं बन रही, कोई टेंशन नहीं, टेबल से नहीं बन रही है। तो आप ये देखेंगे वहां पर जो भी टी रेशोज दी हैं, सॉरी जो एंगल्स दिए हुए हैं, क्या उन एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट लिखे हुए हैं, यानी कि क्या उन एंगल्स का सम 90 बन रहा है। यहां हमने उसी टाइम सेकंड थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखा, यस एंगल्स का सम 90 है। 37 प्लस 53 क्या होगा? 90 होगा ना। उसी टाइम दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। क्या आइडिया क्या होगा बेटा? फिर आप एंगल्स का सम 90 देखते हैं, एक बार टी रेशोज पे नजर मारो। 101% जो नजर मारने पर टी रेशोज होंगी वो होंगी सिस्टर टी रेशोज। और वंस यू फाइंड द सिस्टर टी रेशोज, बी काम, बड़े आराम से क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। दोनों के साथ पंगा मत लेना, एक के साथ लेना। दोनों के साथ लोगे तो क्या हो जाएगा? गड़बड़। देखो cos 57 है, सॉरी 37 है, इस 37 को मैं 90 माइनस 53 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा बताओ आप पहले। नीचे चेंज मत करना, बताओ दोनों चेंज हो जाएगी, फिर फायदा क्या? देखो बेटा 37 को मैं 36 प्लस 1 भी लिख सकता हूं, 37 को मैं 35 प्लस 2 भी लिख सकता हूं, 37 को मैं 100 माइनस 63 भी लिख सकता हूं। पसंद मेरी, जरूरत मेरी। तो जरूरत के अकॉर्डिंग आप जो लिख सकते हो उसको यूज करो ना। तो हम जरूरत के अकॉर्डिंग इसको कॉम्प्लीमेंट बनाना है, तो 37 को आपने कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिख दिया। 37 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 53। लो जी, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा डिवाइड में इसको अनटच रखा था, क्या हो गया? कैंसिल। क्या है आंसर? 1। आई बात समझ में नहीं आई? देखो बेटा, इन क्वेश्चंस का एक ही हथियार है समझने का, कि पहले आप ये देखें क्या उस क्वेश्चन में कहीं से आपके पास जो न्यूमरल एंगल्स हैं उनका, जो आपके पास न्यूमरल एंगल्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो टेबल से तो नहीं है। सॉरी, अगर वो वैल्यू टेबल से है तो आप टेंशन फ्री हो जाओ, फिर तो आप टेबल से वैल्यू पुट करेंगे और आउटपुट ले लेंगे। बट अगर वैल्यू टेबल से नहीं है, उस केस में क्या करना है? उस केस में आप ये सोचेंगे क्या ये जो एंगल्स लिखे हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं? अगर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो फिर आप नजर मारेंगे सिस्टर्स पे, सिस्टर टी रेशोज पे, वो पक्का आपको सिस्टर्स ही मिलेंगी। नहीं मिलेंगी तो कोई ना कोई जुगाड़ बना के बन जाएंगी वो। समझ में आया? तो ऐसे से जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे हम आपको आइडिया देते चलेंगे, डोंट वरी। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। डन ना बेटा? सेकंड पार्ट। 5-6 क्वेश्चंस करोगे उसमें सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, बहुत ही इजी है। कोसिकेंट 32 सीकेंट 58, कोसिकेंट 32 सीकेंट 58। हाँ जी, एंगल्स लिखे हैं न्यूमरल्स में, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में। क्या यहां पर न्यूमरल्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से है? नहीं है, कोई बात नहीं। क्या एंगल्स का सम 90 है? यस। 58 प्लस 30 90 सिस्टर टी रेशोज है, बस बात खत्म। कोसिकेंट 32 को चेंज कर दिया 90 माइनस 58, नीचे सीकेंट 58 एज इट इज। कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा, एंगल को चेंज कर दिया टी रेशो के साथ, नीचे सीकेंट 58 है। द एंड क्या है आउटपुट? 1। यस और नो? सो सिंपल इज दैट बेटा। क्लियर? थॉट प्रोसेस मैंने आपको बता दी। न्यूमरल्स को देखो, टेबल पे जाओ, अगर बात बन रही है तो ओके, अदरवाइज कोई बात नहीं। आगे चलो,
क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट थर्ड। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट थर्ड? टेंजेंट बाय कोटेंजेंट। वाह भाई वाह, बरसात हो रही है नंबरों की। 10 बाय कोट 80। हाँ जी, सम क्या है? 90। सिस्टर्स है? यस है। तो बात बना दे, बना दो, सोचना नहीं है। टेंजेंट 10 को लिख दो आप 90 माइनस 80, कोट 80। 10 90 माइनस थीटा, कोट थीटा। थीटा का रोल प्ले कर रहा है 80 डिवाइड बाय कोट 80। भाई ये लगा लेना यार डिग्री का सिंबल, ये आ गया 1। इन द सेम वे फोर्थ पार्ट, व्हाट इज गिवन? कोस 19 बाय साइन 71। चलो जी, न्यूमरल्स में एंगल है, ठीक है। क्या ये जो एंगल्स हैं टेबल में है? नहीं है, डोंट टेक टेंशन। सम चेक करो, 90 है, बन गई बात। सिस्टर्स है, बन गई बात। लो जी, अब की बार न्यूमरेटर को रख लो, डिनोमिनेटर को चेंज कर लेते हैं। चॉइस इज यूअर्स। 71 को लिख दिया 90 माइनस 90, कोस 90 साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा कट गया, क्या है आंसर? 1। क्वेश्चन नंबर 1 चारों पार्ट का आंसर 1। सिंपली हमने क्या अप्लाई किया? कॉम्प्लीमेंट रूल, फर्स्ट क्वाड्रेंट रूल। फर्स्ट क्वाड्रेंट रूल क्यों बोलते हैं इसको कभी लास्ट में बताएंगे आपको, एक इस पे लेक्चर डालेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। वैसे आप कॉम्प्लीमेंट रूल के अकॉर्डिंग ही इसको याद रख लें, ठीक है जी। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चले, क्योंकि सिंपल है बेटा, तो ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इजीली होने वाले हैं बेटा सारे क्वेश्चंस। कोसिकेंट 25 सीकेंट 65। कोसिकेंट 25 सीकेंट 60। हाँ जी, वहां 1 था, यहां 0 आता चला जाएगा, देखना, क्योंकि माइनस में दे रखी है सिस्टर टी रेशियोज, सेम हो जाएंगी एंगल के साथ और कैंसिल होती चली जाएंगी। देखो 65 प्लस 25 90 होता है, कॉम्प्लीमेंट रूल अप्लाई हो सकता है। टी रेशियोज भी सिस्टर हैं, फिर क्या टेंशन है? कोसिकेंट 25 को लिख दिया 90 माइनस 65। कोई फर्क पड़ेगा क्या इसको? कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट 65, दोनों होंगे कैंसिल, कितना है आंसर? 0। बताओ यार, क्या सिंपल है यार। नॉर्मल आरबीएससी स्टूडेंट फिर लाइक कर दो यार, मजा आने वाला है, अब धीरे धीरे मजा आता ही चला जाएगा, टेंशन मत लो। सेकंड पार्ट, कोड 34 माइनस 10 56। हाँ जी, 34 और 56 का सम क्या है? 90। दोनों बहनें हैं क्या? और सॉरी, मैंने ये कहां से भाई बुला लिया, बहनें हैं दोनों, बोथ आर सिस्टर्स। क्लियर? नाउ सी, कोट 34 टेंजेंट 56, इसको चेंज कर लूं, रखो इसको, कोट 34 को लिख दो 90 माइनस 56। यस और नो? कोट 90 माइनस थीटा 10 थीटा माइनस 10 56, क्या हुआ? स्वाहा। आंसर आया 0। डन बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट थर्ड। क्या है स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट थर्ड की? देखो, साइन 36 कोस 54 माइनस साइन 54 कोस 36। भाई अलग अलग पे नजर मारो पहले, इन दोनों का सम 90, इन दोनों का सम 90। यहां एलसीएम लेके गड़बड़ करने मत बैठना, एक बार दोनों को देखो, टैकल कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हैं बड़ा इजीली। ये देखो, इसको कोस 54 रखा, साइन 90 माइनस 36 को लिख दिया 54। इसको अलग टैकल कर लो,
साइन 54 को लिख दिया 90 माइनस 36, क्योंकि दोनों का सब 90 है, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, बड़ा इजीली क्वेश्चन हुए जा रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा बाय कोस 54, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा बाय कोस 36, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, 1 माइनस 1 0। स्वाहा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आई थिंक आप लोगों को अपने आप भी ट्राई करने चाहिए, बट कुछ स्टूडेंट्स के बार बार कमेंट करते हैं सर सारे ही करवा दो, तो कर ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। सी स्टूडेंट्स, इतनी गर्मी में लगे हुए हैं यार तुम्हारे लिए, तो इसी नाम पे एक लाइक तो कर दिया करो, हमारा पसीने तो ठंडी एसी की हवा मिलती है आपके एक लाइक से। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, साइन थीटा 90 माइनस, ओ सॉरी स्टेटमेंट इज साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा। ओके, गेम खेल रहा है अपने साथ, ये डरना नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा, अरे आइडेंटिटी बन गई समझदार बच्चों, साइंस के थीटा कोस के थीटा क्या होता है 1, आ जाओ। सी क्या होने वाला है, साइन कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस एज इट इज, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, क्या हुआ बेटा, साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा कितना आया 1, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। यस और नो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, होते जा रहे हैं ना इजीली। सो सी स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर, ओके। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल continue from this point. This question is a little bit short, I know, but don't worry. From next into, I think this is the last page. We will complete the exercise within 2-3 lectures. Yeah, don't worry. Okay. In next 2 lectures, I will complete the exercise. Once you try by yourself also, because इस exercise में सारे questions almost एक जैसे हैं, तो मैं बीच-बीच में questions skip करूँगा. ओके, बीच बीच में क्वेश्चन स्किप करूंगा, वो एक जैसे, तो आप अपने आप ट्राई करें, क्योंकि सारा का फंडामेंटल तो सबने देखो, आप दोनों क्वेश्चन में 6 पार्ट कर लिए हमने, सभी के अंदर कुछ चेंज है ही नहीं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। स्टे होम, स्टे सेफ एंड लाइक माय वीडियोस, डू योर वर्क रेगुलरली एंड हैव अ नाइस डे, गुड लक एंड सो ऑन। ऑल विशेस, वेल विशेस आर फॉर यू। गुड लक बेटा।